VARC is that subject that we generally keep for later. You all do it. Okay? What do you think? I'll tell you. You think, kuch hi to topics hai syllabus pe. It's going to be very easy for me. So right now I'm busy with QA. I'm busy with DILR. They have got huge syllabus. So okay, let me finish all this. August में या July end में चलो, I'll start VARC and 3 months are going to be good enough for me to reach a certain score in VARC. Bhai, it's true. There are only 6 or 7 topics. You can literally count them, like RC, critical reasoning, short summary, parajumbles, odd one out, para completion. आइला खत्म ही हो गया ये तो 6 ही तो मेन टॉपिक्स हैं आपके. Besides these, you have to learn some small things here and there. So this is the myth that is there in the market generally, and students goof up because of that. Year after year, I have seen students doing this. They wait for August, and then when they start practicing VARC, when they come to me, उनको यही लगता है शबाना मैम के पास चले जाएंगे, कुछ तो मैजिक गुट्टी दे देंगी हमें, and we'll be able to do it. But VARC is the subject that requires tons of practice. Syllabus बस इतने ही है, right? Topics इतने ही है. But you need to put in hours, you need to sit with me for some techniques, you need to give yourself practice with time management and whatnot. So, don't make that mistake for yourself this year. Okay, people who are repeaters would know what I mean. So, is there a proper strategy for VARC in place? I mean, can we do VARC in 6 months? Yes, we can. I have got a crisp strategy for you, a crisp, kind of a flow for you. Just follow this week after week, fortnight after fortnight, month after month, and you'll see progress definitely. So guys, get up. Don't make that mistake that you have been doing so far, okay? VARC is something that can actually make or break your scores. Hi guys. So I have put together a few slides for you, some very crisp points. Everything is there, cut. You just have to see these points. Maybe you can plan along these lines. Okay? My work is to make your life easy, your VARC easy, and cracking CAT easy. चलिए देखते हैं what points I have in store for you. Now, this is our 6-month strategy for CAT VARC. Can we do something about it? Yes, we can. Even if you're starting now, there is something concrete that you can do. चलिए मैं आपको बता रही हूँ आगे. Just take up a sheet of paper and pen and get ready for this. Or maybe you can, just kind of take pictures, the shots from the slides. Okay. So we are right now in June. पूरा जून बाकी है. June, July, August, September, October, November. November 30th को CAT है. So we have complete 6 months. Let's say you started your prep 1 week back or 2 weeks back. Okay, or maybe you are starting your prep now. Again, it depends. If you are an engineer, a non-engineer, if you are somebody who's very good at VARC, overall English level is good, somebody who is from a weak English background, somebody who is a working pro, somebody who has to go to college, time ki kami hai. So these things will have to be adjusted according to the person's daily engagements and the current level. Okay. Now, I have divided this into 12 broad points. पहले ये देख लो, फिर हर point का micro points देती हूँ मैं आपको. 12 broad points में क्या है? First thing is the syllabus. Make a list of the topics that are there on the syllabus. Number 2, your sequence. The syllabus can be in any way. My strong point is RC, short summary, right? So this is how I'm going to prepare. RC and short summary. Yours can be something else. There may be somebody who's good at PJ. वो सबसे पहले PJ से start कर सकता है. Why? Because on the D-Day, he would want to go to PJ. Again, there's a caveat here. 2024 में PJs आया नहीं था. हो भी सकता है इस बार ना आए, हो सकता है आ जाए. हमने पढ़ना तो है topics. ठीक है? So depending on what your strong point is, your forte is, you have to work accordingly. Get started that way. यहाँ पे वो मत करना आप. Take the most difficult topic first. No, that doesn't pay off in VARC. RC has the lion's share. 24 questions में से 16 questions RC के आते हैं. So I always suggest start with RC. ठीक है? Point number 3, track. Keep tracking your progress for every topic. कैसे करना वो भी चार्ट में दिखाऊंगी आपको. So for every topic, you need to do basics, practice and PYQs.
Basics, obviously you need me to give you the basics, to give you the ज्ञान points, the techniques, the shortcuts, यहाँ वहाँ कुछ कुछ subtle points जो मैं कहती हूँ क्लास में, right? You need those. अब आप मेरे साथ, if you're a subscriber, I mean a paid student of iQuanta, you can sit with me in the paid classes. Otherwise, you can make the most of YT sessions, जिसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ पढ़ाती रहती हूँ. ठीक है. सो बेसिक्स तो आपने वैसे करना है. प्रैक्टिस इट डिपेंड्स अगेन आप कहाँ से करना चाह रहे हो, किसके साथ करना चाह रहे हो, दैट्स अप टू यू. एंड PYQs तो फॉर एवरी टॉपिक have to be done. We have got CAT material, like good material from CAT 2017 to 2024. This much is good enough for you to dig into and practice. All right, point number 4, practice sources. You have to decide. आप कहाँ से लेना चाह रहे हो प्रैक्टिस सोर्स, चाहे वो iQuanta की बुक्स हैं या GMAT प्रैक्टिस मटेरियल है, व्हाटएवर. अभी वी आर गोइंग टू कम टू दैट. ठीक है. पॉइंट नंबर 6, रीडिंग टॉपिक्स. I'm discussing VARC. So the underlying success assumption is reading, daily reading, and of course coupled with vocabulary. तो ये दोनों तो अगर नहीं है तो आपकी तो बिल्डिंग जॉब बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, that's going to come crumbling down. ठीक है. सो रीडिंग सोर्सेज आप डिसाइड कर लो. अभी आई एम गोइंग टू गिव यू अ रफ लिस्ट, उस पे आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डू व्हाटएवर यू वांट. बट कैट हैज सम गो टू सोर्सेज जहां से वो पिक करता है अपने पैसेजेस. एवरी ईयर व्हेन कैट इज देयर, we try to locate the sources of those passages. तो उससे देख करके I'm going to give you a list, a rough list. ठीक है. रीडिंग सोर्सेज हो गया आपका. रीडिंग टॉपिक्स बोले तो सी देयर इज वन वे ऑफ रीडिंग. आप you can just open randomly. Let's say you open Eon and you just keep reading anything. You open the Guardian, political पूरा दिखेगा आपको, New York Times political दिखेगा. No, that is not going to come in CAT. So instead of reading randomly, it's better to take a list of some 300-400 topics जो CAT में pop up करते हैं RC passages में, and then you read accordingly, right? कौन से sources हैं वो भी बताऊंगी मैं. Next, point number 7, number of hours every day. This is absolutely important. If I'm a working pro, I have paucity of time. So I will decide मुझे कितना करना है, डेली करना है, alternate days पे करना है VRC, ये देख लेना आप. ठीक है. So number of hours. Then study alone or in a group. I have seen students swearing by this, that if they have a small clique, छोटा सा 3-4 लोगों का like-minded people, and they study together. Obviously physically you can't study together because सब अलग-अलग जगह पे हैं, but generally students form a group and they study WhatsApp पे, Telegram पे वो करके, and they share material and they practice and then they review and discuss the answers. ठीक है. So it depends on you. If you feel you click better while studying alone, it's up to you. ठीक है. Next point is classes to attend. iQuanta पे सबसे अच्छी चीज ये है, we don't give too many classes. बच्चा रोज बस क्लास सुबह शाम दिन रात क्लास करके परेशान है, वैसा यहाँ कुछ नहीं है. We give limited classes. And then you have to decide based on these classes, I need more practice, I don't need more practice, मुझे ये वाली क्लास करनी है, इसका follow up practice कहाँ करूं मैं. And there's a beautiful thing on iQuanta, we have got application sessions. मेरी क्लास में आप अटेंड करोगे, you learn the concept and then you go down to the application sessions, उस पे आप कर लो. You can do practice yourself, you can do practice with me. Every Tuesday and Thursday I give out practice sessions 4 p.m. to 6 p.m. Right? So please do not cry later, मुझे तो प्रैक्टिस नहीं मिली. भाई मैं दे तो रही हूँ प्रैक्टिस. एक बैच का, like that is batch 1 का फिक्स सेशन आपका सैटरडे को होता है. बैच 2 का फिक्स सेशन वेडनेसडे को होता है. And then there are follow-up practice sessions for both the batches combined on Tuesdays and Thursdays, as I said, 4 to 6 p.m. That is good enough. उसके बाद फिर बच्चा डिसाइड करता है और चाहिए मुझे इसमें प्रैक्टिस. ठीक है मैम, बता दो मुझे सोर्सेस क्या है. Right? Okay, next, YT sessions, how to utilize them. Besides our FB paid groups and paid classes, we have got some sessions on YT as well. मैं क्या करती हूँ YT पे, ये जान लो आप. 3 चीजें हैं that I would really like to mention over here. Number 1, there is one RC series that I do. Okay? RC series, RC 100 का series. It's a product that I'm trying to build up for better practice that the students need. So that goes out in the form of recordings. 30 to 40 minute के sessions होते हैं ये. As recordings I give out. In every session,
I take one RC, I cherry pick it, and I kind of show how to do smart reading, how to handle that RC without sweating actually, how to handle those questions, मेन आइडिया क्या है, कौन से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कौन से करना चाहिए, ये सब मैं उन सेशंस में बताती हूँ. So those of you who need more practice with me for RCs should check those out. Number 2, YouTube पे मेरे एडिटोरियल्स होते हैं, ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 9:30 पे मैं देती हूँ, राइट. वो 9:30 पे जो सेशंस देती हूँ मैं, दीज आर 20 minutes 25 minutes लॉन्ग. इसमें क्या होता है, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स मोर इजिली. जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट रीडिंग सोर्सेज और रीडिंग कॉन्सेप्ट्स की बात की ना, रीडिंग टॉपिक्स की, बच्चा खुद बैठ करके पढ़ रहा है, उसको हो सकता है समझ ना आए. There are students of mine who have come back and given me this feedback. They say कि मैम हम ना खुद पढ़ रहे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता वो कॉन्सेप्ट क्या है. But then somehow when we sit with you, you explain with examples and all, समझ आ जाता है. ठीक है, आप देख लो आपको सूट करता है कि नहीं. I'm just doing that to make your work easy. So जरूरी नहीं है एडिटोरियल बोले तो उसी दिन का फ्रेश एडिटोरियल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. We are not targeting UPSC. इसमें the main objective is to help you build up concepts and understand those concepts well. YouTube का जो third point है, जो third चीज मैं देती हूँ, that is on Tuesday, Thursday and Saturday. I give out short sessions. Short बोले तो फिर भी 1 घंटे का हो जाता है. इसमें we take up some topics. So those of you who are not subscribers of iQuanta can maybe sit with me in these छोटा मोटा sessions and learn थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ. Got it? Plus, even the paid people, if they need more practice with me, they can sit for these sessions. तो भाई ये मेरे YouTube पे चल रहे हैं sessions, चलते हैं, चलते रहेंगे. It's up to you how you make the most of these resources. So चाहे वो books हो, mocks हो, ये sessions हो, सब आपके resources हैं, right? Okay, next point. Point number 11. List of techniques. List of techniques क्या होते हैं? जो क्लास में मैं देती हूँ, शॉर्टकट्स, टॉपिक वाइज, जो कुछ भी है, प्लीज नोट देम डाउन. डू नॉट वेट फॉर दैट डे. एक दिन सुबह होगी, मैम उठेंगी, मैम हमको बोलेंगे हम ये नोट्स दे रहे हैं आपको, आप पढ़ लो, इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, आई नेवर डू स्पून फीडिंग टू माई स्टूडेंट्स. मेरे हिसाब से ये प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग चल रही है. यू हैव टू वेक अप एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, योर डे, योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग. सो इन माई क्लासेस व्हेन यू सिट, keep paper and pen ready and keep noting down the subtle points, fine points, gyan points, this point, that point. ठीक है, last point on the sheet, time management. ये सारा कुछ accuracy building will go kaput if you do not do time management, good time management. Time management कैसे होता है? Time management will happen if you take a good number of tests. देना आपने 30 नवंबर को टेस्ट है ना. ये बैठ करके आप 4 घंटे नहीं मिलेंगे कि ये आरसी का सेट है, सॉल्व करो. वैसे तो कोई भी कर लेगा सॉल्व. सो यू हैव टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, राइट. वो कैसे होगा अभी बताती हूँ मैं. पहले ये सिलेबस देख लो, राइट. सिलेबस ही तो आप सबको पता है, गूगल पे भी मिल जाता है. इट्स जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. आई हैव पुट एवरीथिंग टुगेदर सो दैट किसी बच्चे ने अगर पलटना है ना यूं, तो उसको सब कुछ मिल जाए अंडर वन सेशन. सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग को चिपका के रखा है मैंने. व्हाई? बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग कम्स एज पार्ट ऑफ आरसी. However, critical reasoning is a time-taking question. कितना भी पढ़ा लो बच्चे को, टाइम तो लग ही जाता है उसको सॉल्व करने में. For one critical reasoning question, mostly students take about 4 to 5 minutes. That's why I suggest keep critical reasoning questions for later if they are not your forte. क्यों? क्योंकि 4-5 मिनट एक क्वेश्चन पे निकालोगे तो बाकी कब करोगे? चिड़िया आकर के आपकी खेत चुग के चली जाएगी. Right? Then we have got short summaries, para completion, जिसको fill in the blanks भी बोलते हैं. 2 साल से कैट ये दे रहा है, इस साल भी आने का चांस है. पैराजम्बल्स लास्ट ईयर नहीं आया, कोई जरूरी नहीं कि इस साल फिर से ना आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ऑड वन आउट. ठीक है. एक्स्ट्रा हल्का टॉपिक्स जो साइड टॉपिक्स कहलाते हैं, फैलेसीज ऑफ रीजनिंग, फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच, ग्रामर. कहां से करोगे? आपको, आपकी मर्जी है, गूगल से कर लो, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगी आपको क्लासेस में. ठीक है. Done with the syllabus. A sample sequence. मैंने बोला था sequence आपका डिफर कर सकता है. मेरा sequence ऐसा होगा. If I were in your shoes and preparing for CAT. Reading comprehension, my forte. Short summaries, my forte. मुझे पता है कि इन दोनों में ना आंसर वही है. No external knowledge is needed. That's why I really want to, I would want to do RC and short summaries first. उसके बाद फिर मैं जाऊंगी para completion पे, parajumbles, odd one out, critical reasoning. Critical reasoning, as I said, I really enjoy doing critical reasoning. And it's kind of, something that I can take out. But then as a teacher,
दैट डजंट मेक सेंस हियर। आपने क्या करना है ये मैं बता रही हूँ। सो क्रिटिकल रीजनिंग को प्लीज लास्ट में रखो। I'm telling you 80 to 85 students out of 100 have this problem. They take a lot of time in critical reasoning. उसको करना तो है, छोड़ना नहीं है। Critical reasoning में again strengthen the argument, weaken the argument, assumptions, conclusion. ये चार चीजें आपको करनी होती हैं। उसमें assumptions को अगर आप छोड़ भी दो doesn't matter. मतलब उसको नहीं भी करो, आप तैयारी नहीं भी करो, doesn't matter. अगर आया तो एक क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं भी आता है। So it's a very unimportant topic and a very time-taking topic. Students find it a tough nut to crack, so उसको हटा भी दो। तो बाकी के तीन जो आपके conclusions, strengthen the argument, weaken the argument, ये तो करना ही करना है। Done? तो going forward ये आपके पास ये सारा काम है, track and tick। ये होगा if I were in your shoes, I would make this chart and paste it somewhere on my table, on the wall somewhere, or on my diary, ताकि खोलते ही फर्स्ट पेज पे दिखे QA का ऐसा, DILR का ऐसा, VARC का ऐसा। ये मेरे सिलेबस के 6 मेन टॉपिक्स हैं। बेसिक्स, प्रैक्टिस, PYQs। बेसिक्स, प्रैक्टिस, PYQs। लेट्स से यू अटेंड 10 सेशंस विद मी। 10 सेशंस में 4 सेशंस आरसी के कर लिए आपने, ओके 4 या 5 सेशंस कर लिए। आफ्टर दैट यू फील ओ यस आई हैव अंडरस्टूड मोर और लेस व्हाटएवर मैम ब्लैबर्स इन द क्लास। ले लिया मैंने, बेसिक्स मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, बेसिक्स पर टिक कर देता हूं मैं। I really need more practice now. I have got a list of practice sources. जैसा मैम ने बताया था, why not get down to practice? iQuanta में application classes भी होती हैं। I really need more practice. Dashboard पे भी practice है, ठीक है? तो practice करूंगा मैं। और भाई PYQs तो आपने करना ही करना है, but as the last stage. जब भाई आरसी मेरा हो गया, बेसिक्स आरसी में मैंने ले लिया, प्रैक्टिस भी बहुत सारा कर लिया मैंने, What is the use of all this अगर वो मेरा PYQ solve ही नहीं हो पा रहा है तो? You get the point. So PYQs have to come. As I said earlier, 2017 to 2024 का solid material available है। मेरे पास, आपके पास नहीं, Google पे बहुत freely available है। उठाओ उसको, उससे एक एक सेट उठाया करो। जब मैं अभी टेस्ट की बात करूंगी ना, I would recommend वो टेस्ट में take these compilations, पूरा सेट, and then kind of just try, just solve. समझ में आ रही है मेरी बात? ओके 100% की बात बता रही हूँ दोस्तों, सुन लो जरा। ये प्रैक्टिस सोर्सेज देख लो आप। ये iQuanta मटेरियल इज क्वाइट गुड, ठीक है? आप उसको लेकर के कर सकते हो, डैशबोर्ड पे है, एप्लीकेशन क्लासेस हैं, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करो। वी हैव गॉट आवर बुक्स, ओल्ड मॉक्स ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स, वो आप डिसाइड करो। किसी सीनियर को बोलो, किसी पीयर को बोलो, किसी गर्लफ्रेंड को बोलो, बॉयफ्रेंड को बोलो, किसी को भी बोलो, आप किसी एजुकेटर को बोलो, गेट होल्ड ऑफ सम ओल्ड मॉक्स। Old mocks are good for practice. GMAT RCs are very good when it comes to CAT practice. GMAT RCs won't help you in ZAT, I'm telling you. But GMAT RCs are excellent for CAT practice. सालों साल मैं उससे ही practice करवाती हूँ students को, and those questions are like, quite similar. The elimination is quite similar to what comes in CAT. GMAT RCs कहाँ मिलेगा? You don't need to buy Manhattan and Liverpool and Kaplan and ये वो सब कुछ जरूरत नहीं है। Okay, you just need to go to Google GMAT RC directory. Google करो, उसमें मिलेगा आपको, लॉगिन करने को बोलेगा, पैसे नहीं मांगेगा, लॉगिन कर लो and please keep practicing. You'll get on that directory, you'll get a list. ऊपर से नीचे ऐसे, नीचे से ऊपर 500 लेवल, 550, 600, 650, 700, 750, 800 ऐसे जाएगा लेवल। Do not start with 800. आप कहीं के आइंस्टाइन या शेक्सपियर नहीं हो, राइट? ना मैं हूं। So one has to start at a lower level. नहीं, मेरा तो सब क्लियर है, मैं तो 800 से स्टार्ट करके नीचे उतरूंगा, मत करना, गिर जाओगे। सो स्टार्ट विथ 500 लेवल। 500 पे अगर आपके हर पैसेज बन जा रहा है ना, अच्छे से बन जा रहा है, 5-6 पैसेजेस करके छोड़ दो, मूव टू 600 लेवल। 600, 650 पे इफ यू गेट स्टक एट सर्टेन क्वेश्चंस, देखो, समझो, भापो, कहां फंस रहा हूं, कैसे फंस रहा हूं, क्यों फंस रहा हूं मैं। और उसका एक पैटर्न बताती हूँ मैं आपको, जीमैट का जो ये बता रही हूँ ना डायरेक्टरी, उस पे लाइक 600, 650 वाले जो लेवल पे है ना, उस पे आपको ज्यादातर मेन आइडिया क्वेश्चंस मिलेंगे। 700 एंड अबव वाले पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। लो लेवल पे वाले पे आपको स्पेसिफिक इन्फो क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत मजेदार उनका फ्लो है वैसा, एंड इट इज सुपर प्रोडक्टिव, ठीक है? कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, ज्यादा उसके ऊपर पसीना नहीं बहाने का, छोड़ देने का, उसको आगे बढ़ जाने का है। और एक एक पैसेज में कई बार 8-8 क्वेश्चंस होते हैं, कोई जरूरी नहीं है भाई मैंने तो 4 ही क्वेश्चंस पिक करने, 4 क्वेश्चंस पिक किया मैंने, 4 क्वेश्चंस कर लिए, खत्म,
ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा थिंकिंग ऑन योर फीट, ये भी अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं कि बस परेशान, अच्छा मैम ने तो 4 क्वेश्चंस का बोला था, यहाँ तो 8-8 क्वेश्चन है, क्या करूं मैम, कहाँ हैं आप? समझ में आई मेरी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग सोर्सेस, भाई ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। वाई? बिकॉज कैट हैज सम गो टू सोर्सेज, एज आई सेड। मॉडरेट दे दिए मैंने, डिफिकल्ट दे दिए मैंने आपको। डू नॉट स्टार्ट विद डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट एक्चुअली गुड इन इंग्लिश। डिफिकल्ट स्टार्ट करोगे क्या होगा? यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड मच ऑफ व्हाट यू रीड। हाँ, रीड करना कितना ये भी तो बता दूं, डेली 30 minutes. This is what I recommend. Different people can have different take on that, but my recommendation is 30 minutes so that you don't get bored. करेक्ट? कईयों को तो रीडिंग की आदत ही नहीं है, तो शुरू में तो ना ऐसा जहर टाइप लगेगा। यू हैव टू डेवलप दैट लव फॉर रीडिंग बाय रीडिंग थिंग्स दैट यू लाइक। फिल्म के बारे में पढ़ो, गाड़ी के बारे में पढ़ो, मेकअप के बारे में पढ़ो, डू वट एवर यू वॉन्ट, इंटीरियर्स का कोई मैगजीन लेकर के पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट डेवलप दैट लव फॉर रीडिंग फॉर 10 days एटलीस्ट। उसके बाद नॉवेल्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन कोई आपके काम नहीं आने वाला है कैट में। दैट इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट, दीज मैगजीन्स आर गुड फॉर एंटरटेनमेंट, बट ये जो सोर्सेज दिए मैंने, इनसे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो दीज विल बी सिमिलर टू व्हाट अपीयर्स इन कैट का आरसीज। समझ में आ गई बात? सो कैट में सिर्फ एडिटोरियल काम नहीं आता है। एडिटोरियल मेरा सेशन भी है, बोलने को एडिटोरियल होता है, बट editorials and good articles, this is what we say, this is what we recommend for CAT RC. Hope this is clear दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग टॉपिक्स, रीडिंग टॉपिक्स में एक हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है VRC एसेंशियल्स, जो हमने ऑलरेडी दे दिया है आपको, लॉन्च किया है सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, आप क्या करो, कॉन्सेप्ट लिस्ट भी FB के ग्रुप में FB के पेड ग्रुप पे डाला हुआ है। वो एक लिस्ट कंपाइलेशन मैंने दिया है बेस्ड ऑन द लास्ट 10 years का RC पैसेजेस। वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, वो आपको नजर आएंगे RC में। ठीक है, ये 2 हो गए। एडिटोरियल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 9:30 पे MWF आई कीप डूइंग दीज। यू कैन जस्ट पॉप इन, सिट देयर विद अ कप ऑफ चाय, कॉफी और व्हाटएवर एल्स यू वांट एंड एंजॉय द सेशन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हेन आई ब्रेक देम डाउन एंड एक्सप्लेन दोस टू यू विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। फाइन। लास्ट वन, इजी एक्सप्लेनेशन ऑन YT। कोई टॉपिक समझ ना आए, सीधा आप यूट्यूब पे जाओ, बोलो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोक्रेटिस ट्रायल। वो आपको इतना सिंपल फोटोज के साथ देगा ना, कहते हैं ना पिक्चर इज वर्थ 1000 words, राइट? तो वो जब पिक्चर्स के साथ आपको समझाएगा ना, और ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है। These are reading topics. हाँ, I was saying, अगर आप नॉन सब्सक्राइबर हो, हाउ विल यू बिल्ड दिस अप? सिंपल फंडा है। आप 10 साल के कैट का जब आप वो करो ना, चेक करो PYQs, यू कैन मेक योर ओन लिस्ट, प्रिपेयर दैट लिस्ट, और उसमें से ना लाइक कम से कम आपको 50-60 तो यूं ही मिल जाएंगे टॉपिक्स। उस तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग करो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। नंबर ऑफ आवर्स एवरी डे, इट कैन वेरी। Okay, it also depends on your level. Right now, if I'm starting and I'm very weak in VARC, I would need to put in extra hours every day, at least 2 hours every single day, till I reach a certain platform where I'll be a little aram se. Correct? Let's say I'm somebody who has very good Phadu level of English. मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, शशि थरूर ने देना है कैट, वो आज स्टार्ट कर रहा है। He doesn't need to do much. ठीक है, शशि थरूर एक्सट्रीम हो गया, छोड़ो, उसका एग्जांपल नहीं दे रही मैं। कोई अच्छा स्टूडेंट है, somebody who has been an avid reader, और उसने देना है कैट, अब वो आज स्टार्ट कर रहा है। He doesn't need to do every day. वो alternate days पे भी अगर हैंडल करेगा ना VRC, that's good enough. Okay? Then depends also on daily engagements. Daily engagements का मतलब ये नहीं कि आप डेट शीट पे जा रहे हो, धनिया पुदीना मिर्च लाने जा रहे हो, पिक्चर देखने जा रहे हो, ये नहीं। Daily engagements means you are a working pro, you are a college goer, you work part time, इस तरह की चीजें। So depending on the time that you have daily with you, उसके हिसाब से आप अपना सेट करो। या तो आप डेली VARC कर सकते हो, और you can do it on alternate days। ठीक है, as I said, depending on your level। alternate days से ज्यादा मत फैलना कि भाई मैं हफ्ते में 2 दिन करूंगा। हफ्ते में 2 दिन रहने दो, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट। ओके, शॉर्ट टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट क्या है? Now, all this whatever I said will not work out अगर आपका on the D day टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। आपको पता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। 40 मिनट्स का टेस्ट होगा कैट का, पूरा टोटल आपको पता है 2 आवर्स का होगा। 40 मिनट्स। फर्स्ट सेक्शन इज VARC। इसी में अगर धमाल नहीं किया आपने, है ना, इसमें अगर बर्बाद हो गए आप, तो मलाल रह जाएगा उसका आपको, और फिर आगे दोनों सेशंस पे यू विल सी द इफेक्ट। सो
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको मैं कहती हूँ द 20-minute hustle, that not only impacts your VARC but also impacts the entire paper, your entire performance in CAT on that day. How? First 20 minutes. If I'm able to cherry pick, like, the best 7 to 8 questions in the first 20 minutes, I'll get a boost of confidence. I'll feel like, oh yes, I can do things. So the remaining 20 minutes in VARC will be good, and then LRDI plus QA सब अच्छा जाएगा आपका, ठीक है, मतलब होपफुली वो फ्लो अच्छा जाएगा, साइकी आपका सही लेवल पे रहेगा. Okay, so time management में I advocate 3 things. Not only sectionals and mocks. There is something else called TBTs. Time bound test. अरे मेरा दिया हुआ नाम है, गूगल मत करना, बोलना ये तो है ही नहीं मौजूद, आप कहां से ला करके फैफ कर रही हैं. मेरी मर्जी, मैं उनको टाइम बाउंड टेस्ट बोलूं, मैं उनको भिंडी बाउंड टेस्ट बोलूं, कुछ भी बोलूं मैं, राइट. सो TBTs ये एक्चुअली होते हैं 20 मिनट के टेस्ट. सेक्शनल 30 मिनट्स का होगा, मॉक आपका पूरे 2 घंटे का होगा, राइट. TBT 20 मिनट्स का होता है. 20 मिनट्स का आपको कहीं मिलेगा नहीं. यू हैव टू डू इट. हाउ डू यू डू इट? 20 मिनट टेस्ट के लिए यू सेट द टाइमर फॉर 20 मिनट्स, टेक अ कंपाइलेशन ऑफ 15 to 20 क्वेश्चंस. यहां पे मैं कहती हूं ऑलवेज टेक अ प्रीवियस सेट ऑफ कैट. ठीक है, 24 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट्स का अलार्म सेट करो. 10 मिनट का मत करना कभी भी प्रैक्टिस, 5 मिनट का नहीं करना, उतने में तो ना आपका दिमाग सही होते होते ही अलार्म बज जाता है. 20 मिनट्स इज अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ टाइम रेंज. सो 20 मिनट्स का अलार्म सेट करो, टेक दैट कंपाइलेशन, कोई भी एक सेट, जरूरी नहीं कैट PYQs लो, आप कहीं से भी ले लो. 15 to 20 क्वेश्चंस, माइंड यू 15-20 क्वेश्चंस लेने हैं. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ टेस्ट ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन. द स्ट्रैटेजी दैट यू कैन एक्चुअली चेरी पिक 7 to 8 moderate level questions, doable questions from the entire lot. 7 to 8 क्वेश्चंस नहीं पिक कर सकते हो आप 24 में से, फिर क्यों ही खेल रहे हैं हम ये, राइट. सो शॉर्ट TBTs में आप अलार्म लगाओगे 20 मिनट्स का, पुट द क्लॉक अवे फ्रॉम यू. घड़ी है हटा के रख दो, फोन है हटा के रख दो, बार बार देखते रहोगे यू विल पैनिक. ओके, एंड देन वो 20 मिनट्स में ये कंपाइलेशन लेकर के ट्राई टू पिक 7 to 8 द बेस्ट क्वेश्चंस, द मोस्ट डूएबल क्वेश्चंस, वेरी वेरी स्वीट क्वेश्चंस. हर पेपर में कैट के ऐसा होता है, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट. तो डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा मॉडरेट रहेगा, चंक. इजी कम रहेंगे, डिफिकल्ट थोड़ा सा ज्यादा इजी से रहेगा. गॉट इट. सो मॉडरेट आप पिक नहीं कर सकते हो 7 to 8 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, बट हाँ प्रैक्टिस नहीं है. सो ये जो शॉर्ट टेस्ट है कितने देने हैं ये भी अभी मैं बता रही हूं आपको, ये आप फॉलो करके देखो, इट विल वर्क आउट फॉर यू. ओके, सेक्शनल्स 40 मिनट्स का होगा. अब सेक्शनल आप चाहे VARC का दो, चाहे LRDI का दो, चाहे QA का दो. ओके, मॉक्स तो पूरे 2 घंटे का होता है. ये पता है, यहाँ पे एनालॉजी देना चाहूंगी मैं. शॉर्ट टेस्ट जो TBTs है ना, दोज आर लाइक 100 मीटर रेस. सेक्शनल्स जो है आपके 200 मीटर रेस है, एंड मॉक्स आपके मैराथन है. मैं सोचूंगी मैं ना सीधा मॉक से ही मैराथन से स्टार्ट करती हूँ, दौड़ने की इतनी भी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, आई विल फॉल या आई विल रन आउट ऑफ स्टैमिना. मंथ वाइज फ्लो, अब आप जान लो ये क्या करना है. पूरा सारा डिटेल्स दे दिया मैंने. नाउ दिस इज व्हाट यू शुड अबाइड बाय इफ यू आर गोइंग टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. जून लास्ट वीक टू जुलाई एंड. ओके, अभी से लेके जून के लास्ट वीक तक प्रैक्टिस, क्लासेस करो, प्रैक्टिस करो, जस्ट काइंड ऑफ पुट ऑल द लूज एंड्स टुगेदर. जून लास्ट वीक से जुलाई एंड तक, सो यू गॉट 5 वीक्स. शॉर्ट टेस्ट TBTs 25 शॉर्ट टेस्ट यू विल डू, खुद करना है, राइट. उसमें एक चीज आप जान लो, 25 में पहला 10 या 11 टेस्ट में यू विल फेल, मिजरेबली यू विल फेल. 10 तक फिर भी कुछ लोगों का नहीं जाता है, 7-8 तक तो हर हाल में यू विल फेल. 20 मिनट्स का अलार्म बज जाएगा, यू विल हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस. ये क्या हो रहा है, खत्म, मैं तो नहीं कर सकता हूं, छोड़ो, ये ना मैम का बकवास टेक्निक है, ये काम नहीं कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है. Your brain is not used to it, so you have to give it some time. So I say keep trying, do not throw in the towel in that stage. Okay, आपका 6-7 such test तक you will fail. 10th या 11th test तक भी you may fail. After that you will see improvement. ये लिख के रख लो आप, आना मेरे पास बाद में बोलने अगर ये नहीं हुआ तो.
Why? Because your brain gets pushed into that zone. It comes out of its comfort zone and it knows कि यार उठो करना है, 20 मिनट में करना तो है ही नहीं, तो ये तो मुझे मार डालेगा. ठीक है. August and September, please take up sectionals. 16 sectionals. August and September means I'm talking about 8 weeks. 8 weeks में 2 sectionals per week, good enough. But ऐसा थोड़ी है कि अगस्त एंड सितंबर में हम सेक्शनल्स दे रहे हैं. हाँ, टीबीटी बंद कर देना आप, उतना काफी है. टीबीटीज 20 मिनट का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा, पावर. फर्स्ट 20 मिनट्स आई कैन डू इट. फिर ये जो अगस्त एंड सितंबर आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शनल्स, ऐसा नहीं है कि हम तब मॉक्स नहीं देंगे. फिर मॉक्स देंगे कब? नवंबर में. ऐसा नहीं होता है. सो मॉक्स यू कैन डू 1 per week. You get it? August and September, I'm showing you two months, 8 weeks. 8 weeks में 2 sectionals per week, 16 sectionals, good enough. Mocks maybe one per week, या थोड़ा सा स्पेस आउट करके ना 6 मॉक्स आप दे लो. ठीक है. तो आपको साथ साथ दोनों का प्रैक्टिस हो रहा है. Then October to November 15th, mocks का frequency will go up about 12. You space them out. Okay. Last fortnight of November, 15 दिन, 10 mocks देने हैं, almost 1 every day. And please remember this point. It's not written there, but you have to remember this. Analysis of mock is equally important. Otherwise, you may as well not take the mocks. Okay. Analysis कैसे करते हैं? That will be another short video of mine in which I'll give you the details. इस तरीके से analysis करना है आपको. Cool, everybody? फिलहाल तो go ahead, get started with these things. I think I have spoken enough, and I think these were like very clear points. सब दे दिया मैंने यहाँ पर. अब आपके पास है क्या? The ball is in your court. You need to get up and you need to take charge. You need to get started with practice today. इतनी तो clarity दे दी मैंने, बत्ती जल गई होगी. Go on, guys, start working. For everything else, I'm there. You can come to me for whatever doubts and all. आपको पता है where to find me. See you, everybody. Take care.